Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. कैसे हैं आप सभी बेटा? I hope you all are studying properly, which is very important for you all to study very well. So, children, firstly, I should write down the date and details. So, I hope the board is properly visible to you all. So, the date is 30 and 21. Okay, it is not visible properly. Okay. Date is 30 10 21. Okay. Class 11C. Subject psychology. ठीक है. So details are provided to you all. 30, 10, 21, 11C subject psychology. Students, so many things we have studied, so many things we have learned. So the points which we are discussing is we are discussing the chapter memory. Memory chapter हम डिस्कस कर रहे हैं. मेमोरी में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं. We discuss about the different types of memory. We discuss about different types of memory, means sensory memory, short-term memory, long-term memory. We also discuss about the long-term memory in detail. Then short-term memory also I had discussed with you. Okay. शॉर्ट टर्म मेमोरी भी मैंने आप सभी से डिस्कस किया है. सेंसरी मेमोरी क्या होती है वो डिस्कस किया है. तो सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये डिस्कस हुआ है. ओके. आई डिस्कस विद यू द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मेमोरी ऑल्सो. मेमोरी के कॉम्पोनेंट्स क्या हैं ये मैंने डिस्कस किए हैं आप सभी से. फाइन, दिस इज डन. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. आगे बढ़ेंगे इसी में. So the topic which I am after the long-term memory classification also we have discussed yesterday. So today we are going to discuss about some of the topics like the measurement of memory. Okay, so write down the topic. Measurement of memory. आप कैसे मेजर करेंगे मेमोरी को? हाउ यू विल मेजर द मेमोरी? मेजरमेंट ऑफ मेमोरी. मेमोरी को मेजरमेंट कैसे करेंगे? सो बेसिकली अगर इफ वी हैव टू मेजर द मेमोरी, मेमोरी को अगर हमें मेजर करना है तो देर आर सो मेनी मैथड्स बाय द हेल्प ऑफ विच यू कैन मेजर द मेमोरी. जैसे सबसे पहले द फर्स्ट मैथड इज सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क. सेंटेंस sentence verification task. It is also one of the measurement of memory. Sentence verification is some kind of related to the true false statement. Okay, so sentence को verify करना. Some of the sentences are given to you जिसे आपको verify करना है. तो sentence verification task यानी the tasks which are related to the true false. Okay. So first method of measurement of memory is sentence verification task. Sentence is given जिसे आपको verify करना है, true false देना है. This is also one of the method जिसे आप किसी के भी memory को measure कर सकते हैं. Second method is the free recall. You can also use the method of free recall. आप free recall का भी use कर सकते हैं. Spelling is wrong. REC. फ्री रिकॉल.
फ्री रिकॉल मतलब होता है किसी भी ऑर्डर में रिकॉल कराना, आप किसी भी ऑर्डर में किसी को भी रिकॉल करा सकते हैं, सो दैट इज अ फ्री रिकॉल। ठीक है। थर्ड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेमोरी इज प्राइमिंग। Third measurement of memory is priming. Priming is one of the method which you require the answer like filling the blanks या analogy type questions. So इनसे भी measure हो सकता है memory. ठीक है. So write down these things. Here I have written task as it is not coming properly. So मैं यहाँ लिख दे रही हूँ task. ठीक है। इज इट डन? आपने लिख लिया? चलिए। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मेमोरी, लेट्स डिस्कस समथिंग न्यू, अदर टॉपिक। वन ऑफ द टॉपिक विच इज गिवन इन योर बुक इज मेमोरी एज अ constructive process. Memory as a constructive process. Memory as a कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब होता है? यूजली सबसे पहले जो वर्क जिसने किया था मेमोरी पे, द नेम इज हरमन एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने वर्क किया था मेमोरी में, हरमन एबिंगहॉस। सो एबिंगहॉस ने जब वर्क किया था तो उन्होंने कहा, ही सेड दैट मेमोरी इज अ प्रोडक्टिव प्रोसेस। उन्होंने ये कहा मेमोरी एक प्रोडक्टिव प्रोसेस है। Productive means whatever we encode, the same way we will retrieve it. वैसे ही हम retrieve करते हैं। जैसा हम encode करते हैं वैसा ही हम store करते हैं और वैसे ही हम retrieve करते हैं। So he said that memory is a productive reproductive process, reproduce करते हैं। But Bartlett आए, Bartlett is the name of a psychologist, जिसने कहा कि मेमोरी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ जो भी चीज़ इनकोड करते हैं वही प्रोड्यूस करते हैं, हम कंस्ट्रक्ट भी करते हैं। मेमोरी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है। मेमोरी इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस मीन्स आपने you can understand this with one of the example के साथ आप समझ सकते हो। just take an example. Okay. For example, teacher is giving a lecture in the classroom. क्लास में टीचर एक लेक्चर देता है and when the teacher asks to the children, okay, tell me this definition. तो टीचर ने, अगर हमारा जो मेमोरी जो है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता, तो जिस वे में टीचर ने बोला, द स्टूडेंट ऑल्सो डिलीवर द सेम कंटेंट इन द सेम मैनर, बट नो, यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट दैट द कंटेंट इज चेंज। कंटेंट में चेंज होता है। वो चेंज क्यों है? क्योंकि मेमोरी कंस्ट्रक्ट करती है, वी कंस्ट्रक्ट इट, वी रिप्रेजेंट आवर ओन थॉट्स, फीलिंग्स इन दैट। सो दैट इज वाई मेमोरी इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है, इट इज ऑल अबाउट द फॉरगेटिंग।
आपको किसके बारे में पढ़ना है? यू ऑल हैव टू स्टडी अबाउट फॉरगेटिंग, ठीक है? फॉरगेटिंग के बारे में पढ़ना है। नाउ फॉरगेटिंग इज समथिंग वन ऑफ द पार्ट ऑफ मेमोरी। फॉरगेटिंग क्या है? एक तरह से मेमोरी का ही पार्ट है, ठीक है? किसका पार्ट है? मेमोरी का। फॉरगेटिंग क्यों होती है? देयर आर सो मेनी रीजन फॉर फॉरगेटिंग। द 3 मेन रीजन्स विच आर आइडेंटिफाइड इन योर syllabus is firstly forgetting due to stress decay. Second, forgetting due to interference. Third, forgetting due to retrieval failure. So basically 3 मेन रीजंस बताए गए हैं फॉरगेटिंग के। आप प्लीज इसे नोट डाउन करेंगे बच्चों। ओके, इज इट डन? आपने लिख लिया? सो सबसे पहला है फॉरगेटिंग ड्यू टू स्ट्रेस डिके। स्ट्रेस डिके का मतलब होता है कि डिसयूज थ्योरी, इसे हम डिसयूज थ्योरी भी कहते हैं। स्ट्रेस डिके को हम डिसयूज थ्योरी भी कहते हैं। डिसयूज मतलब जिसका यूज नहीं हो रहा। फॉरगेटिंग ड्यू टू स्ट्रेस डिके यानी डिसयूज। अगर हम किसी भी चीज़ का यूज नहीं करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो वो डिके हो जाता है यानी खत्म हो जाता है हमारे मेमोरी सिस्टम से। सो वन ऑफ द रीजन फॉर फॉरगेटिंग इज द डिसयूज, हम उसका यूज नहीं किया। सेकेंड इज द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर फॉरगेटिंग। इंटरफेरेंस से भी फॉरगेटिंग होती है। इंटरफेरेंस आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? उन्हें पढ़ लेते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लिए तो इसे रब करना है। इंटरफेरेंस 2 होते हैं, एक होता है प्रोएक्टिव एंड अनदर इज रिट्रोएक्टिव। सो 2 तरह के जो इंटरफेरेंस होते हैं वो होते हैं प्रोएक्टिव और रिट्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव वो इंटरफेरेंस है where the old memory interfere in the recall of new memory. प्रोएक्टिव में क्या होता है? जैसे आपने कुछ ओल्ड लर्निंग की, नाउ आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं तो वो आपके इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, तो दैट इज इन प्रोएक्टिव। रेट्रो जब न्यू लर्निंग अफेक्ट द ओल्ड लर्निंग, आपने कुछ नया सीखा, अब आप पुराना कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो, आप नहीं कर पा रहे, तो दैट इज अ रेट्रोएक्टिव। रेट्रो वर्ड आपने बनाया ना, रेट्रो से बना है न्यू। रेट्रो का मतलब ही हुआ न्यू and pro means old. So old learning affect the new learning and retro में new learning affect the old learning. Is it clear? So 2 हमने पढ़े कि फॉरगेटिंग क्यों होती है। एक तो डिसयूज से, हम उसका यूज़ नहीं करते लंबे समय तक तो वो डिके हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो हमारे मेमोरी से कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है, फॉरगॉटन हो जाता है। सेकेंड होता है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव जो होता है वो ओल्ड। सेकेंड होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से भी फॉरगेटिंग होती है। एंड थर्ड आप रीजन लिख लीजिए। व्हाट इज द थर्ड रीजन? द थर्ड इज द retrieval failure. You are unable to retrieve anything, recall anything. You remember the thing. आपको लगता है मुझे ये चीज़ याद है, बट आप उसे रिकॉल नहीं कर पाते। That is also is known as the forgetting. It is also somewhere the type of forgetting. Retrieval failure. आप retrieve नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है?
सो मेमोरी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मेमोरी के रिगार्डिंग फॉरगेटिंग क्यों होती है हमने पढ़ लिया। नाउ यू ऑल हैव टू read about memory enhancing techniques. There are some memory enhancing techniques. कुछ मेमोरी इन्हांसिंग टेक्निक्स होते हैं जिनसे आप मेमोरी को इन्हांस कर सकते हैं, जिन्हें हम निमोनिक्स कहते हैं। दे आर नोन एज निमोनिक्स। These mnemonics are divided into two parts. One is using images and another is using organization. One is using images and another is using organization. ठीक है, mnemonics using images and mnemonics using organization. ओके फाइन। आते हैं इमेजेस। इमेजेस की हम जब बात करेंगे, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड टू टू पार्ट। इसमें भी टू पार्ट्स हैं। वन इज द कीवर्ड मेथड and another is the lossy method. Organization में भी two parts हैं. One is chunking and second is first letter heavy. First letter technique. Chunking and first letter technique. Mnemonics using images, mnemonics using organization. Mnemonics का मतलब होता है इनके थ्रू हम मेमोरी को इन्हांस कर सकते हैं, यानी वी आर एबल टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इन अवर मेमोरी सिस्टम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक के लिए हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज वन पॉइंट। नाउ कीवर्ड मेथड क्या होता है? व्हाट इज कीवर्ड मेथड? इन कीवर्ड मेथड वी मेक जैसे जो भी वर्ड आपको लर्न करना है दैट इज अ टारगेट वर्ड। टारगेट वर्ड को लर्न करने के लिए हम उसके लिए कीवर्ड बनाते हैं। ठीक है, उस कीवर्ड्स को बनाते हैं और फिर हम उसे इमेजिन भी करते हैं। एज इट इज़ रिटन इट इज़ यूजिंग इमेजेस। सो एक वर्ड होता है जिसका हम कीवर्ड बनाते हैं और फिर इमेजिन भी करते हैं। Like for example, one of the example is given in your book. If anybody have to learn the word pato, pato is a French or Latin word. ठीक है, अगर किसी को ये वर्ड pato याद रखनी है तो pato क्या होता है, उसकी मीनिंग होती है डक। हिंदी में, इंग्लिश में उसे डक कहते हैं और फ्रेंच में इसे pato कहते हैं। pato को लर्न करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप उसके लिए कीवर्ड बना सकते हैं पॉट, और इमेजिन भी कर सकते हैं अ डक वॉज इन द पॉट। एक डक है जो कि पॉट में है, तो इससे आपको वो वर्ड जो है पैटो वो रिमेंबर रहेगा। ओके, इट इज क्लियर। सेकेंड है निमोनिक यूजिंग इमेजेस में। सेकेंड है लोसी। लोसी इज रिलेटेड टू द लोकेशन। वी फॉर्म द लोकेशन, हम लोकेशन बनाते हैं। ठीक है, लोकेशन कैसे बना सकते हैं? दिस इज वेरी यूजफुल व्हेन एनीथिंग यू हैव टू लर्न इन अ सीरियल ऑर्डर। जब किसी भी चीज़ को आपको एक सीरियल ऑर्डर में लर्न करना होता है तो उसके लिए लोसी मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव। लाइक आई एम गोइंग टू मेक यू सी हाउ इट इज़ इफेक्टिव। आई एम रबिंग इट विद द होप आपने से इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा। तो मैं बताने जा रही हूँ निमोनिक्स using images
where I am going to discuss with you method of loci. Method of loci. ठीक है. सो मैथड ऑफ लोसी को मैं एक्सप्लेन कर रही थी. इफ़ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू हैव टू लर्न एनीथिंग इन अ सीरियल ऑर्डर. सो इससे मैं डिस्क्राइब कर रही थी सीरियल ऑर्डर में अगर किसी भी चीज़ को लर्न करना है तो आप क्या करते हैं, उन आइटम्स को का एक लोकेशन बना लेते हैं अपने माइंड में, एंड जस्ट यू हैव टू गो अ मेंटल वॉक टू दैट वन. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स हैं, लेट मी राइट इट ऑल्सो, लाइक टोमेटो, पहले नाइफ, पेन, ब्लू, कवर. So मान लीजिए suppose 1 2 3 4 5 6 7. Here I had written very few words, but just suppose that you have to learn these 7 words in a serial order. आपको इन 7 words को एक सीरियल ऑर्डर में लर्न करना है. तो सीरियल ऑर्डर में लर्न करने के लिए क्या करेंगे, आपको एक मेंटल वॉक लेना होगा और एक मेंटल इमेज बनानी पड़ेगी. और ऑलरेडी इट इज़ रिटन हियर दैट इट इज़ अ निमोनिक यूजिंग इमेजेस. तो इमेज बनानी होगी, तो एक इमेज बना लीजिएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन योर एट योर होम, यू जस्ट वॉक इन टू द किचन में आप देर वॉज अ टोमेटो एंड स्पेनेट एंड नाइफ वॉज देयर. देन आफ्टर कमिंग टू द किचन you go into your room where the board, pen, glue and cover is written. So आपको किस only the 2 places I had make you to imagine, मैंने 2 ही places imagine करा है. आप अपने रूम से आप किचन में गए, then again you come back to your room. When you go to the kitchen, you have seen the tomato, spinach and the knife. Then you turn to the your room, जहाँ पे आपको क्या दिखा, where you got the glue, cover, board, pen, glue and cover. बोर्ड आपको दिखा आपके रूम में, पेन, ग्लू और कवर. सो आपको एक मेंटल वॉक लेना होता है और यू विल बी एबल टू रिकॉल द थिंग्स इन अ सीरियल ऑर्डर. सो दीज 2 मेथड कम अंडर द मेथड ऑफ यूजिंग इमेजेस. नाउ निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन. What come under the mnemonics using organization? Mnemonics using organization. इसमें क्या है? इसमें first method is the first letter technique which everybody know. ऐसा कोई नहीं है जिसे ना मालूम हो first letter technique. फर्स्ट लेटर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो ऐसा कभी नहीं होता जो आपने कभी नहीं यूज़ किया हो. सो मेनी टाइम्स यू यूज इट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लेटर टेक्निक इज विबग्योर. व्हेन यू हैव टू लर्न द 7 कलर्स ऑफ रेनबो, you use the word विबग्योर. P for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. So this is also related to the first letter technique, विबग्योर. सेकेंड मेथड ऑर्गेनाइजेशन में है वो है चंकिंग. चंकिंग मैंने when I am teaching you about the STM short term memory, there I told you about chunking. Means chunking is also one of the method like in which you divide the many important thing into smaller parts and able to write it down. Okay? Is it done? Here I will write down completely. So note down this one. So here we have completed a discussion about the mnemonics. I hope you understand it, and we have completed the syllabus also. Okay. So just keep revising, children. Thank you so much for carefully observing and listening to me. Thank you.